Okay, Jai Hind, good evening. This is Dr. Kaveri for another interesting session and conversation on books, drama, and screen. And today I am hosting this panel discussion on behalf of Literia Insights. So, quickly, not wasting any time, let me introduce our honorable guests together. Dr. Anand G. Goswami, a doctorate of energy economics and policy from the Energy and Resources Institute, awarded as one of the best author by a digital literary award in 2020 by Literary Insight and Literary Mirror. He's a trained classical singer. I mean, he has got the training for over a decade. He was a jury for a lot of music, art and film festivals. He is also been recognized by Human Rights Association for his blog GrecoMissDiary.org, recognized by CRY for his contribution to the child's right protection. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लिटेरिया इनसाइट के बुक्स ड्रामा एंड स्क्रीन सेशन में. थैंक यू. थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था तो जी सर, कोई बात नहीं. एंड हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, आई मीन इट्स अ प्लेजर इंट्रोड्यूसिंग बोथ आवर गेस्ट एंड आई विल हैव द ऑनर टू इंट्रोड्यूस आवर नेक्स्ट गेस्ट, श्री अरुण कुमार मलिक, असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज क्राफ्ट. He is a graduate diploma holder from National School of Drama in 2007. He is a multi-talented personality, an actor, director, set and prose designer, awardee of Charles Wallace India Trust Fellowship, awarded with Bismillah Khan Youth Award by Sangeet Natak Academy in 2014 and 2015. सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में. Thank you. And also we have Nitish Raj and Mr. Vikas Raj Saxena from the Literia Insight, and also the organizer for this book tour and a wonderful session. Thank you for giving me opportunity for hosting this. And without wasting any time further, let me begin with the discussion, if I have the permission from Nitish and Vikas both. No, of course we start the session. Okay, Thank wonderful. you so much. So okay, पहले मेरा सवाल आनंद जी आपसे है कि हाउ मच डू यू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक्स, ड्रामा एंड स्क्रीन. आपके लिए आपके ओपिनियन में किस तरह का क्या मायने रखता है? मेरे लिए तीनों, आई थिंक ऑल थ्री आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड टू मी. सी, फाइनली द पर्पस ऑफ writing a book is also to create an imagery in the mind of the audience. And so when we write a book, finally at the end of the day we create a set of imageries in the mind of the readers, and when you create an image, it's a frame. So automatically any book at the back of the mind is essentially creating a screenplay or a frame in the mind of the reader. Right. So naturally कोई भी किताब का स्क्रीन के साथ तो कनेक्शन है ही, उसको सिर्फ विजुअली फिर किसी एक कैमरा के लेंस से दिखाना है. जो डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर, पूरा फिल्म का टीम जो है, वो उसको एक ढांचे देके अपने आप एक स्क्रीन तक लाते हैं. एंड इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी, और it's very important. Most authors also crave for that journey, in the sense when we write, it's a fantastic feeling to see your work also right there on the screen. And I think it's a very satisfying journey for anyone who writes. Yes. राइट. सो सर, सेम सवाल मेरा हमारे दूसरे ऑनरेबल गेस्ट से है कि आप ये जो कॉन्सेप्ट है, जितना हम इस पे बिलीव करते हैं, इसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स भी हैं जब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं. सो अरुण जी, आपसे जानना चाहूंगी कि हाउ मच यू आर ओके विद द कॉन्सेप्ट, और इसमें जो प्रोसेस पे जो चेंजेस लाए जाते हैं, आप कितना सहमत हैं उस चेंजेस से? एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसको आगे, मतलब बुक्स को जब हम पढ़ते हैं बुक्स को, तो हमें डेफिनेटली उसमें हम बहुत सारी चीजों को खुद अपने, हर एक बंदा जब पढ़ता है वो अपने हिसाब से इमेजिन करता है जी. तो स्टोरी का अलग अलग वो ये रहता है. लेकिन मेरा पहला ये रहेगा कि बुक्स में थोड़ा वो दिक्कत जो है, वो बुक्स जो है उसकी पहुंच जो है बहुत ज्यादा दूर तक नहीं है, क्योंकि वो कुछ लिमिटेड, मतलब लोगों तक पहुंचती है. जैसे हम ये बोल सकते हैं कि मतलब पढ़ने जितने लोग लिटरेट हैं, मतलब वो लोग तक पहुंचता है. जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहां तक वो चीजें पहुंच नहीं पाता. और दूसरी बात, लैंग्वेज लिमिटेशन भी उसमें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो इसलिए
ज्यादा मतलब कॉमन मैन तक पहुंचने में बहुत ज्यादा हमें हेल्प नहीं देता। मतलब जी। अगर अनपढ़ लोग हैं या थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज के, तो उसमें बहुत दिक्कत करता है। जी। लेकिन हाँ, जब फिल्म हो या हम थिएटर की बात करें, तो उसमें क्या है कि विजुअली हम लोग क्या है कि जो मतलब लोगों तक आराम से ये चीजें पहुंच भी पाता है, चाहे वो लिटरेट हो या भी वो नहीं भी हो, उसे जी। कोई मतलब नहीं था। वो विजुअली किसी भी चीज को प्रदर्शित करने में वो मतलब आपको या ऑडियंस को मतलब वो ज्यादा प्रभावित करता है, और मतलब लोगों की मेमोरी में लंबे समय तक वो रहता भी है। अगर अगर लैंग्वेज नहीं है, मतलब समझ नहीं आता, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जी। विजुअल देख के उसको और अच्छे से ज्यादा दिन तक उसको समझ के उस अपने मेमोरी में उसको रख सकता है। जी। ओके। ओके। हाँ जी, बिल्कुल, काफी अच्छे सही पॉइंटर्स उठाएं जिसमें मेरा सवाल आगे आएगा। सो अरुण जी, फिलहाल आपसे मैं अगला ये जानना चाहूंगी कि आजकल जो एरा है, इट इज समथिंग डिफरेंट। ये जनरेशन नेक्स्ट का एरा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका समय ज्यादा चल रहा है, स्पेशली जब से लास्ट 2 साल से जो लॉकडाउन का शुरू हुआ है। सो आपको लगता है कि ये टाइम में या पिछले अगर हम 10 साल की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये मॉडर्न एरा का जो टाइम चल रहा है, कि इसमें ड्रामा की जो महत्व है उसका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस कम हुआ है? कम तो हुआ है, जी। बट जब इस समय जो पेंडेमिक के समय में, हम्म। बट मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मतलब बुक से ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि जब हम ये चीजों को मतलब एजुकेशन के साथ हम उसको जोड़ें। हम्म। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, या मतलब थिएटर, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, थिएटर कंपनियां, जी। या फिल्म इंडस्ट्री, ये सब ये कोशिश करें कि हम कॉमन मैन तक इन चीजों को, जैसे एजुकेशन को हम पहुंचा रहे हैं। जैसे आप साधारण आप देखेंगे तो जैसे हम टीवी में देखते हैं जो डांस इंडिया डांस वगैरह, ये सारे प्रोग्राम हम देखते हैं, तो ये सारे लोग क्या करते हैं कि उनको बच्चों को और ज्यादा प्रेरित करते हैं, और वो लोग हर जगह डांस सीखना, सिंगिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना, तो ये सब करते हैं। तो उसी हिसाब से हम अगर थोड़ा सा इसको शायद सरकार हो या आप मतलब हमारे जितने सारे इंडस्ट्रीज है सब, वो सारे अगर थोड़ा सा इसमें जिम्मेदारी ले, और लोग इस समय परेशान हैं, मतलब हर तरह से मेंटली बहुत प्रेशर में है, और हम चाहे तो उन मतलब, और हर एक बंदा वो क्या है कि मोबाइल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, हर एक बंदा। अब जी। उनको मतलब हमारे यंग यूथ जो है वो हर चीज अपने उंगलियों में रखना चाहता है, तो उसमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके पास वो जो विजन देखने के लिए है, मतलब वो सब खत्म हो रहा है। कुछ भी चीजें, बुक्स ढूंढना है मतलब मोबाइल में ढूंढ लो, क्योंकि वो किताब पढ़ते समय उसको जो एक विजुअल वो क्रिएट करते हैं, वो तो खत्म हो जाएगा इसमें। क्योंकि ये और उसमें ये दिक्कत भी है कि मोबाइल में जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारे सही नहीं होते, कुछ गलत होते हैं, उनको भी बिलीव कर लेते हैं हम लोग। तो सारे माध्यम को हमें थोड़ा सा करके हमें थिएटर और ये इन सबको लेके थोड़ा सा दूर दूर तक, रूरल एरिया तक हम पहुंचा पाए, जी। तो मुझे लगता है लोगों को अभी इसमें ज्यादा हेल्प मिलेगा, और उनको एक मतलब आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी इन चीजों से। Okay, okay. So, Anand ji, I have a similar question for you. The same way कि do you feel कि जो ये ड्रामा एंड ये जो ट्रेंड था एक जमाने में, कि छोटे छोटे रामलीला से लेके देयर वर स्मॉल प्लेस जो गांव में हुआ करते थे, एंड धीरे धीरे नुक्कड़ पे भी हुआ करते थे, तो वहां से वो ड्रामा का शुरू हुआ जो थिएटर तक पहुंचा धीरे धीरे। सो उसकी जो वैल्यू है, डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू इज डिक्लाइनिंग? एंड अगर हाँ, तो फिर क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं टू ब्रिंग बैक द ड्रामा ग्लोरी? देखिए, आपके सवाल के 3-4 पहलू हैं। आई मीन देयर आर 3-4 एलिमेंट्स टू दिस क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग। सो एक है कि क्यों क्यों डिक्लाइन कर रहा है, उसका एक नजरिया हम दे सकते हैं। दूसरा है, क्या इट्स मोर ऑफ एन एथिकल क्वेश्चन, क्या डिक्लाइन करने देना चाहिए, जी। दैट्स अ मोर एथिकल क्वेश्चन। और तीसरा और चौथा है, अगर क्यों हो रहा है तो फ्यूचर क्या होना चाहिए, और अगर नहीं करने देना चाहिए जी। तो क्या
करना चाहिए। तो ये 4 पहलू में हमें इसको देखना पड़ेगा। तो फॉर इंस्टेंस अगर क्यों कर रहा है, इसलिए हम सब लोग जिम्मेदार है यार, समाज के सारे लोग जिम्मेदार है इसके लिए। अगर आप लोगों ने तमाशा देखे हैं, तमाशा, इम्तियाज अली का तमाशा में कहानी बताने की रामलीला से बहुत सारे सुंदर रेफरेंस है। बट आप देखिए ना, एक तमाशा फिल्म फ्लॉप हुआ था, आई मीन वो मेरे 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 जहन में वो एक मास्टरपीस फिल्म था। इम्तियाज अली कहानी के जो पॉलिटिक्स है, ये जो सवाल आप बोल रहे हैं, वहां पे वो दृश्य अगर आप देखेंगे जहाँ पे सुखविंदर का वो जो गाना है, चल पड़ी कहानी, वहां से एकदम रामलीला, हनुमान रामायण, महाभारत से लेके एकदम फाइनल, एकदम स्टेज प्रोडक्शन तक पूरा वो गाने के थ्रू से वो दिखाया गया है। फिर छोटे छोटे जगह जहाँ पे वो जोकर को देख रहा है, जोकर जो बोर्डिंग में ना, बात है कि अगर उस फिल्म को ही हम देख ले, उस फिल्म में ये चारे क्वेश्चन का आंसर है। तो वो जिस कॉन्टेक्स्ट में समाज में तड़प रहा था रणवीर, that's a kind of a capitalism, the so-called mediocrity of capitalism, which doesn't allow him to even pursue what he wanted, and he was a forced engineer, but कहानी उसके जहन से नहीं जा रहा था। उसको सब कुछ छोड़ के चाय के कुल्लड़ लेके एक पेड़ के नीचे फाइनली वो बैठ के कहानी से ही शुरू करना पड़ा था। और वहां से उसका पोटेंशियल किसी ने बताया, फिर दीपिका पादुकोण ने बताया कि आप में ये क्षमता है। कॉर्सिका में बताया, बट कॉर्सिका से वापस आने के बाद वो पेड़ के नीचे ही, जस्ट लाइक बुद्धा, एक पेड़ के नीचे उसको एनलाइटनमेंट मिला था। तो नुक्कड़ नाटक और यात्रा और कोई भी ये लोकल जो फॉर्म है, देखिए, ये कभी भी नहीं जा सकते। ये हमारे संस्कृति है और दिस इज आवर कल्चर, एंड आई स्ट्रांगली फील, एंड दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज सेइंग। आज देखिए, आज की कॉकटेल की दुनिया में वापस हमें बाउल गाने को ही नए तरीके से बनाना पड़ रहा है। कोक स्टूडियो में डिफरेंट फोक फॉर्म्स को ही एक नया नजरिया दिया जा रहा है। तो जो ऑथेंटिक होता है वो कभी नहीं जाता है, ठीक है? ये ऑथेंटिक है। बात है कि हम किस नजरिए से इसको एक डायरेक्शन दे। जो उन्होंने भी बताया, मेरे रेस्पेक्टेड ऑनरेबल गेस्ट मेरे साथ जो है, उन्होंने भी यही बताया कि ये सब सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार का भी नहीं है। सरकार तो है ही, मुझे लगता है समाज के हम सब लोगों में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम कितने फैमिली में सोचिए ना, जब बड़े होते हैं हम एज ए मिडिल क्लास फैमिली, हम कितने लोगों को इनकरेज करते हैं, अच्छा मेरे बेटा या बेटी यात्रा करेगा या करेगी, स्कूल नहीं जाके वो जाते, तो कला को कैसे दिखा जाएगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका वैसे फोकस है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया जा रहा है कि ये सब भी इम्पोर्टेंट है एजुकेशन के लिए। ये भी एक एजुकेशन का बड़ा स्तर है। तो जैसे ही आप समाज को इस तरीके से डीपली बदलेंगे, ये कल्चरल फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगे। और मेरे नजरिए में कोई भी कॉमर्स जो सारे कल्चरल फॉर्म्स को ऐसे ध्वस्त कर देते हैं, हमारे बुजुर्गों के ये कल्चर, मुझे नहीं लगता है वो सही है। एंड दैट्स द एथिकल एंड राइटिस्ट क्वेश्चन आई एम सेइंग दैट। इमेजिन, तमाशा मैंने 3-4 बार देखा था, जिस हफ्ते वो रिलीज हुआ था, मुझे इतना अच्छा लगा था। बट कितने लोग तमाशे के फ्रेम्स को बार बार देखे हैं? इट वॉज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल फिल्म। लोग उसको बहुत लोग मेरे सामने हॉल में बैठ के बोल रहे थे, ये क्या हो रहा है, अजगुबी क्या कहानी क्या बता रहे हैं। सो that is the question, and I mean that is the larger question that we have to think through, and I think coexistence is important. ये either और बंद करना पड़ेगा। राइट ओके। ये चीज हम लोग जब जाते भी हैं कहीं प्रोग्राम देखने के लिए, थिएटर या कहीं और फोक परफॉर्मेंस वगैरह देखने जाते हैं, तो वहां पे भी हम देखने का नजरिया भी बदल गया है। एक्चुअली मैं कहीं कुछ देख रहा हूँ तो पहले मेरा मोबाइल ओपन होता है जी, मैं उस मतलब अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता हूँ, उसको देख नहीं पाता हूँ अच्छे से, उसको मोबाइल में पहले रिकॉर्ड करता हूँ। अब वो क्या है कि मोबाइल के मेमोरी में रिकॉर्ड होता है, आपके मेमोरी में रिकॉर्ड नहीं होता है। फिर आप मोबाइल के मेमोरी जब फुल हो जाता है तो आप उसको क्या करके डिलीट करके रख देते हैं, ना आपने यहाँ देखा ना आपने वहां देखा जी। तो ये भी बहुत असर करता है कि जो मीडियम है ये भी बहुत मतलब असर डालता है हमारे ये फोक फॉर्म हो या यात्रा
और भी जितने सारे थिएटर और ये वगैरह में ये भी बहुत ज्यादा असर डालता है। जी जी। सो सवाल का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अरुण जी, आप ही से अगला सवाल है कि आप वो एक कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा एक आर्ट फिल्म को बहुत ज्यादा एक अलग टैंजेंट में लेके जाती है या और भी उसको महत्वपूर्ण बनाती है? मेरे हिसाब से मतलब चरित्र चित्रण जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पहले तो अभिनेता जो है वो मतलब हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, टाइम, ये सारे चीजों को वो इसमें उस सारे चीजों के साथ वो एक कैरेक्टर बनाता है। मतलब कौन से पीरियड का है वो कौन से रिलीजन से है, मतलब उसका कलर टेक्सचर क्या है, वो मतलब उसका क्लास क्या है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, ये सारे चीज लेके वो एक चरित्र बनाता है जी। और उसके साथ साथ उसके एटमॉस्फेयर भी उसको हेल्प करते हैं। तो कैरेक्टर चरित्र चित्रण मेरे हिसाब से तो चरित्र चित्रण ही है। Okay. So, continue to what Arunji has said. Anandji, I would like to ask you the similar question कि अगर हम इसमें specifically if you are talking about acting, तो एक art movie में acting के हिसाब से वो कौन सा एक element है? Probably if you can mention even about a technical element जो which is required when you are acting in an art film. पहले तो मुझे ना ये फिल्म के बीच ये जो डिवीजन हो जाता है ना, आर्ट कमर्शियल में, मुझे सिनेमा होता है। मतलब मैं तो कोई भी सिनेमा देखता हूँ, हर सिनेमा से कुछ वो जैसे अरुण जी ने सही बताया, आपके देखने का नजरिया के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जिस टाइम पे कोई भी मूवी देखूंगा वो मेरे ऊपर है, मेरा ध्यान उस टाइम पे मैं फोन एकदम दूर कर देता हूँ, देखता ही नहीं हूँ। फोन आए मतलब वो भाड़ में जाए। मैं अगर सिनेमा देख रहा हूँ, वो 2 घंटा सिनेमा के साथ मेरा एक गहरा रिश्ता है, कोई नहीं आ सकता बीच में। तो जो आप सवाल पूछ रहे कि तो आर्ट फिल्म मतलब कोई भी मूवी में जो मेरे लिए, देखिए एक स्पेक्टर, तो प्लॉट उन्होंने बोला, उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक, प्लॉट, टेक्निकलिटीज, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, वॉइस मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशन, ये सब तो है ही। बट मेरे लिए एक फ्रेम को वो सिनेमा के क्यों बनता है, मतलब एक जैसे उन्होंने बताया कि एक यात्रा हो, थिएटर हो, सारे डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम है। तो अगर हम सिनेमा मीडियम में देखें, सिनेमा मीडियम में हर सीन में एक्टर और चरित्र बनता है स्पेक्टर के थ्रू से। स्पेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए। वो एक सिनेमा का एक दृश्य को एक अलग नजरिया देता है। मैं आपको मतलब इजी एग्जांपल दे सकता हूँ जो सब लोग देखे हैं ऐसे मूवी से भी। कोई भी एक मूवी उठा लीजिए, मैं आपको बोल दे सकता हूँ कि कहाँ पे स्पेक्टर आ रहे हैं। आप कोई भी मूवी लीजिए, कोई पॉपुलर मूवी, थोड़ा सा हटके जो पॉपुलर एक मूवी लीजिए, मैं बोल दूंगा। कोई भी एक पॉपुलर मूवी लीजिए। थप्पड़ ओके। अच्छा, थप्पड़ में देखिए, थप्पड़ में जो एक सीन है जहाँ पे जब उसको थप्पड़ पड़ा, when for the first time she was hit that night, उसके बाद का 5 मिनट अगर आप देखें, उस 5 मिनट में कोई एक्चुअली बातचीत नहीं है। अगर स्क्रिप्ट को अगर देखें, वो 5 मिनट्स का जो शॉट है थप्पड़ पहले बार पढ़ने के बाद, दैट्स एक्टिंग, दैट्स अ गुड एक्टिंग। उसमें कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं। द एंटायर 5 मिनट इज साइलेंस, बट the entire 5 minute is a majority of acting। तो मुझे लगता है कि आजकल जो मूवीज भी हो रहे हैं ना ओटीटी में, दैट्स समथिंग। मैं अब बहुत मूवी जो प्लेटफॉर्म है वहां पे ज्यादा मूवी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा नाराज हूँ अभी काफी सारे ओटीटी कंटेंट से। मुझे वहां लग रहा है बहुत ज्यादा लाउड कंटेंट हो रहा है। वहां पे हम साइलेंस लेके ज्यादा प्ले नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल सेंसिटिविटी ऑफ एक्टिंग, फ्रेम, जो अरुण जी बोल रहे हैं, एक रिश्ता तैयार करना अपने ऑडियंस के साथ, ठीक है, वो सिर्फ एक टेक्निकलिटीज, एक मैंने प्रोडक्शन बना दिया, ऐसे सिनेमा नहीं बनते या एक्टर एक्ट्रेस नहीं बनते। उस फ्रेम को कैसे होल्ड किया जाए, कौन सा शॉट क्लोजअप शॉट होगा, क्यों वो जो आपने थप्पड़ बोला, वहां पे तापसी पन्नू के आंख में एक फोकस होता है थप्पड़ पड़ने के बाद,
हाँ, दैट इज एक्टिंग, दैट इज द डायरेक्टोरियल आई। कि कौन से जगह पे मैं उसके उसके देखेंगे, उसके ये जगह पे बहुत फोकस होता है थप्पड़ पड़ने के बाद, एंड देन देयर इज अ फोकस इन द टू आईज। ठीक है, राइट, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। आप अगर एरोनॉफ्स्की की फिल्म देखेंगे या इंडियन फिल्म ही देखिए, इंडियन इंडियन डायरेक्टर्स कोई भी उठा लीजिए आप, अनुराग कश्यप ले सकते हैं या कोई भी अच्छे, रंग दे बसंती ले सकते हैं। देखिए काफी सारे साइलेंस शॉट होता है जहाँ आई, अब जैसे ये रंग दे बसंती में राइट। जब माधवन मर जाता है, हम्म, जब वो न्यूज आता है, आमिर खान का एक शॉट है 2 मिनट के लिए, उसके होंठ कांप रहे हैं कि वो बोल, और उसके बाद 2 मिनट बाद आमिर खान बोल रहे कि ये बच्ची है, इसको क्या होगा, मतलब सोहा अली खान वॉज वेरी डियर टू हिम, सो ही इज फीलिंग फॉर सोहा अली खान। उसमें कोई कोई और कुछ नहीं बोलता है आमिर खान, सिर्फ एक ही बात बोलता है, एंड देन देयर इज अ लिटिल ट्रेम्बलिंग इन द लिप्स। राइट, दैट्स एक्टिंग, दैट इज एक्टिंग। सो अब देखिए, रंग दे बसंती इज अ कमर्शियल फिल्म, राइट। इट्स अ कमर्शियल फिल्म। तो मुझे लगता है एक्टिंग का, एंड इट इज, देखिए इट इज प्रैक्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल। कोई भी एक गुड एक्टिंग का कोई ऐसे डेफिनेशन नहीं हो सकता। इट इज हाउ यू गेट टू द डेप्थ ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टर। सो मैंने एक कुछ इंस्टेंस देके आपको बताया, दैट्स इट। ओके, ओके, दैट्स वंडरफुली पुट। नाउ मेरा अभी जो थोड़ा सा मैं स्विच करूंगी डायरेक्शन से, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मूवीज एंड उनके एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट। सो अरुण जी, आप ऑफ कोर्स आप प्राध्यापक भी रह चुके हैं एंड आपने काफी ज्यादा जनरेशंस भी देखी हैं एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न। तो ये जो जनरेशन है करंट, एक एक चीज होती है खुद की सेटिस्फैक्शन, इनर सेटिस्फैक्शन, एक चीज होती है कमर्शियल सक्सेस। सो एक्टिंग की जहां तक बात है, आजकल जो ये जनरेशन है, मैं बताऊं तो दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट कि पैसा आना चाहिए, कि मुझे काम चाहिए, मेरे को फेम एंड नेम भी चाहिए। तो आप एज एन अध्यापक ना, जब आप उनसे जब बात करते हैं तो आप उनको क्या वो नसीहत देते हैं टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड कमर्शियल सक्सेस? तो आपकी उस पर क्या राय होगी? देखिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन पहले। जी, आप खुद संतुष्ट नहीं होगे अपने काम से, जी, आप उसको फिर मतलब कमर्शियल ये में कैसे लेके जाएंगे? जी। क्योंकि वो काम तो आपको ही पसंद नहीं आ रहा है, और हमें वो भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम अपना गुजारा नहीं है, क्योंकि हमें इसी से अपना मतलब अर्न करना है, इसी से हमें जीना है। लेकिन उसके मतलब इसके बावजूद भी आप कला के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ओके, वो आपकी संतुष्टि होना आवश्यकता है। problem. Anand ji, the same question goes to you. What is that one, being such experienced mentor to many, आप क्या कहना चाहेंगे? Because once people, अभी आप देखेंगे कि सेलिब्रिटी लाइफ से कि जो हम लोग हैं नॉन सेलेब्स पीपल, हम लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, द वे दे लिव, द वे दे एक्ट, एवरीथिंग। उन्होंने बोला भैया केसरी पान पसंद बहुत बढ़िया है, तो पीपल गो एंड बाय दैट। सो इतना ज्यादा इफेक्ट है। तो उस टाइम पे आप जो है वो बच्चों को क्या बोलते हैं मानसिक तौर पे, हाउ शुड दे ब्रिंग दैट बैलेंस? हाउ डू यू एडवाइज देम? नहीं, वही तो बात है ना। देखिए, आपने पान मसाला का ऐड दिया, मैं तो पर्सनली आई विल से दैट्स इट्स कॉल्ड surrogate advertisement, which I don't like. मैं खुद ही एंटी सिगरेट कैंपेन का पार्ट हूँ, and I am pushing for an anti cigarette world where students don't, but coming back to your question, जो सर भी बोल रहे हैं, अरुण जी भी बोल रहे हैं, मेरे लिए भी ये रूल्स बहुत सिंपल है कि आप एक्टिंग करेंगे तो आपको दिल का सुनना पड़ेगा। अगर आप एक्टिंग छोड़िए, अभी हम तीनों बैठ के ये से बातचीत कर रहे हैं, मैं अगर जब आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये भी एक पाठशाला ही है, अभी हम तीनों मिलके एक एक्टिंग स्कूल की तरह ही बात कर रहे हैं। बट अगर मुझ में ऑथेंटिसिटी नहीं होगा, जिस नजरिए से मैं बोल रहा हूँ, तो ये शो का कम्युनिकेशन किसी भी जगह हम पुट फॉरवर्ड करें, वो नहीं पहुंचेगा। सो ऑथेंटिसिटी तभी आएगा जब आप दिल का आवाज सुनेंगे। बट ये भी बात है कि कॉमर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको गुजारा करना पड़ेगा। बट देखिए, सिर्फ अगर कॉमर्स ही इंपॉर्टेंट होता तो पंकज त्रिपाठी भी नहीं बनते। हमें पंकज त्रिपाठी का जर्नी पता है, मतलब उन्होंने कैसे सब छोड़ के दिन गुजारे, कैसे
कैसे आज के डेट में these are the people who think we have many good interesting role models. So I will say students should have role models like Pankaj Tripathi. I mean, who is so simple, who goes back to the गांव in Bihar. उसके पापा बोल रहे हैं हाँ आजा मेरे साथ थोड़ा खेती बाड़ी कर ले, स्टार हुआ तो क्या हुआ. That is right. अगर उसके ऊपर जब वो शॉट दे रहा है, वो छतरी जो उसके ऊपर लग रहा है शॉट देने से पहले, वो कैरेक्टर के लिए लग रहा है. इट इज नॉट, पंकज त्रिपाठी इज नॉट लार्जर देन दैट कैरेक्टर. वो छतरी चला जाता है, मेकअप चला जाता है जब द फिल्म गेट्स ओवर, एंड देन यू आर बैक अगेन टू योर नॉर्मल सी. तो ये शिक्षा हमें समाज में देना पड़ेगा. हमने एक ना बबल क्रिएट कर दिए थे, अभी वो टूट रहा है. So which I am very happy. आप देखिए संजय मिश्रा जो कामयाब वाला, जो संजय मिश्रा we all know, संजय मिश्रा गरम हवा जिसकी फिल्म है, संजय मिश्रा के एक्टिंग देखिए. संजय मिश्रा के साथ एक नीलेश मिश्रा का एक सीरीज है, वो सुपर्ब. I mean these people, so these people should be our role models. And right. For each one of them, संजय मिश्रा आप लिख लीजिए, फिर आप पंकज त्रिपाठी देख लीजिए, उन लोगों ने कॉमर्स सोचे, बट उनका स्ट्रगल दिल से था. राइट, दिल का सुने पे. जी, दैट्स एब्सोल्युटली राइट एंड वेरी वेल पुट. जब आर्ट फिल्म करते हैं तो उस मतलब वो इतना कमर्शियली उसमें पैसा इनकम करने का वो नहीं रखते वो लोग. और उसमें क्या होता है कि आर्टिस्ट जो है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो काम करता है कि हाँ मुझे इसमें अपनी जो अंदर की जो कलाएं हैं मैं उसको दिखाना है मुझे. और वो कैरेक्टर के पूरा डेप्थ में जाते हैं. वो कैरेक्टर कैसे, मतलब हर चीज को ध्यान में रखा जाता है कि वो कैरेक्टर के बारे में, मतलब वो कैसा वो इंसान होगा, बैठना उठना से लेकर हर चीज उसके मतलब उसके मेंटली स्टेटस को लेकर हर चीज में वो बहुत ही मतलब समाज से जो चीजें घट रही है, समाज के लोगों से ही उठाना. और वो भी स्टोरी कहाँ का है, तो वो स्टोरी के हिसाब से वो समाज जिस समाज का है उस समाज के साथ वो अपने आप को वहां पे मर्ज करता है. मतलब मैं शायद आपको कितने अच्छे से समझा पा रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन वो वहां करता है कि मैं जो भी जिस समाज के साथ मुझे इस स्टोरी को दिखाना है मैं उसके साथ मर्ज हो जाऊं. ठीक है, लेकिन कमर्शियल उसमें ये होता है कि हमें एंटरटेनमेंट करना है, थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ पिक्चर. अगर मैं इस तरह से कहूँ कि अगर ओमपुरी साहब, दिवंगत ओमपुरी साहब अगर एक आर्ट सिनेमा में कर रहे हैं तो वो रियलिस्टिक. जैसे मुझे याद है एक मूवी अर्ध सत्य और एक आक्रोश, ओमपुरी साहब की बात करता हूँ, उनकी काफी आर्ट सिनेमा देखी है मैंने. तो अर्ध सत्य में जब बात करें तो बहुत रियलिस्टिक. आक्रोश में भी कि अगर उनकी वाइफ जो है स्मिता पाटिल जी, जो सिर्फ एक लेबरर है डेली लेबरर, एक ऐसा डेली लेबरर, ऐसा नहीं जैसे हमारे बॉलीवुड में देखते हैं कि बंदा कॉलेज जा रहा है और फरारी से जा रहा है और मैडम जो है पढ़ाने के अलावा सारे काम कर रही है. मतलब वही, सॉरी टू यूज सच वर्ड्स, बट आजकल हमारे करण जौहर साहब की मूवीज, मतलब हमें तो यही सोचते हैं कि ऐसे कॉलेज हमें पता होते तो हमने उसी में एडमिशन ले लिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं. वैसे उसमें वही चीज है कि जब हम कभी मार्केट में बेचना होता है, जो लोग आजकल पसंद करते हैं, उसमें इतने मिर्च मसाले डाला जाता है कि वो फुल टू एंटरटेनमेंट होता है. लेकिन आर्ट मूवी में इन सारी चीजों को नहीं देखा जाता. उसको बड़े मतलब बहुत ही सहज और बहुत ही टू दी पॉइंट रियलिस्टिक एस्पेक्ट, अगर एक वर्ड में बोले तो जितने रियलिज्म के करीब आप जा सकते हैं. तो एक सवाल मेरा यही है, जैसे बहुत ये चर्चा होती रहती है. अभी रिसेंटली जो है जब भी ओटीटी की, जैसे सर ने बात करी कि बड़े लाउड कंटेंट आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो है ना, ओटीटी ने ये चीज जो लार्जर देन लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है कि हीरो इज द मतलब सुपर पावर, मतलब उसे आपने 36 गोलियां मार दी, चाहे 3600 गोलियां मार दी, मरना नहीं है उसे. और सर ने धनुष की बहुत बार बात करी, तो हमने उनके आर्ट मूवीज भी देखे और ऐसी मूवीज अमिताभ जैसी मूवीज भी देखे हैं. तो सिर्फ इसी को फर्क मान ले रही है, एक्टिंग की क्लास में या एक्टिंग के क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है? एक सवाल है मेरा. नहीं, एक्टिंग के क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है. मैं यही बोल रहा हूँ कि वहां पे एक मतलब गोली एक लग गया, वो उसको कितने तरह से वो मरने की वो करता है. रियल देखा जाए तो एक गोली लगी सर लगता है मरने में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा गोली जाता भी है और 2 पीस होके हाँ जाता है. लेकिन एक पैराडॉक्स है सर. एक सवाल है मेरा, और आनंद जी सर भी इसमें मुझे सपोर्ट करेंगे. आपने कहा कि ठीक है आर्ट मूवी में बजट कम होता है और एक्टर का क्लास बहुत हाई होता है. जैसा मेरा सवाल स्टार्ट किया था मैंने ओमपुरी साहब से, कि उन्होंने बहुत सारी कमर्शियल सिनेमा भी करी है और 2-3 जैसे मैंने बताया कि जो आर्ट सिनेमा है.
तो मतलब जहां पैसे कम मिल रहे हैं वहां क्वालिटी हाई हो गई है, और जहां पैसे ज्यादा मिल रहे हैं वही क्वालिटी डाउन हो गई। यस यस। सो जो हमने जो लास्ट सवाल रखा था कि एंड उसी से जुड़ा हुआ एक है कि जब ओके एक किताब में मैंने जो एक मूवी देखी थी द टू स्टेट्स, जो चेतन भगत की किताब से जो है वो नॉवल से इंस्पायर्ड थी। बट क्या हुआ कि मैंने पहले मूवी देखी एंड देन किताब पढ़ी, बट समहाउ मुझे जो किताब ज्यादा पसंद आई एज कम्पेयर टू द। तो ऑफ कोर्स कि जब हम सिनेमा तक बात पहुंचती है तो कहीं वो कमर्शियल की बात आ जाती है, थोड़ा तड़का मसाला एज पर द ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस उस पर से बनाया जाता है। सो नो, मेरा जो सवाल आनंद जी से है, सर हाउ मच यू आर ओके विद द चेंज ऑफ स्क्रिप्ट, और जब थोड़े से एक छेड़छाड़ किया जाता है ओरिजिनल राइटअप से, सो हाउ मच यू आर ओके व्हेन इट कम्स टू कमर्शलाइजेशन, और डू यू थिंक दैट कि उस जो स्टोरी का जो एसेंस है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है? सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, I don't think I have any right to comment on this, because I think it's completely the decision of the writer and the movie making team and the author. And every author has their own perspective about art forms and art communication and the art process. Right. And in this, I don't think there's one standalone comment I should make. For instance, it completely depends on the relationship structure between the author whose book will be adopted by the production house and the director. So they have to sit together, and if they are in sync with each other, I mean, that's fine. I mean, that is completely their consensual decision of what they want to do. But there are both pros and cons of what you were saying. मतलब इससे कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो भी सकता है, कभी कभी कुछ जगह पे क्रिएटिव एक्सीलेंस जा भी सकता है, बट कुछ कभी कभी विजुअल इसका कम्युनिकेशन से एक्चुअली एक नया आर्ट फॉर्म भी जनरेट हो सकता है, जो शायद ऑथर ने कभी सोचा ही नहीं था। वो शायद डायरेक्टर ने उसको इंटरप्रेट करके एक नए तरीके से देखा है। तो मुझे नहीं लगता है कि आर्ट फॉर्म में ये बैरियर क्रिएट करना चाहिए। आई मीन, फाइनली ये ऑडियंस के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए थोड़ा, कि ऑडियंस को क्या लग रहा है, या as a creator we create a form, we think of an image, we think of a structure, but then as I'm saying, I mean, हैरी पॉटर ही देख लीजिए। हैरी पॉटर एक्चुअल किताब और हैरी पॉटर की मूवीज आप अगर देखेंगे तो कुछ कुछ जगह पे when I have seen, I mean, I actually read Harry Potter later. I saw the films first and then I saw Harry Potter. मतलब then I read Harry Potter. बिकॉज मैं पहले बहुत थोड़ा एंटेगोनिस्टिक था अबाउट रीडिंग हैरी पॉटर. Those are different issues of debates why I was antagonistic, but after watching Harry Potter films I read Harry Potter, few of the books. I have not read also all the books of Harry Potter. I have read only 3 books. I have not read all the books of Harry Potter. I have read 3 books. I have read 3 books and I have gone to the depth of those 3 books, try to understand that. But कुछ जगह मुझे लगा है कि when I again then I have gone back and forth to the movie, उसी बुक को पढ़ने के बाद उसके मूवीज में जब गया हूँ, मुझे कुछ जगह लगा है कि in terms of a creative excellence the cinema actually has done a great job in terms of certain interpretation. But in certain cases, yes, I mean, so this is just a classic example, but many classics, बहुत सारे क्लासिक को जब हम मूवीज में रूपांतरित करते हैं, ट्रेडिशनल क्लासिकल लिटरेचर से अगर हम लेके उसको एक से एक सिनेमैटिक एंगल देके उसको जब बड़ा एक स्केल देते हैं, बहुत जगह वो डिफिकल्ट होता है फॉर द डायरेक्टर, फॉर द मूवी मेकर, बिकॉज एक आप देखिए ना, एक किताब में से एक 350 या 550 पेज का एक किताब है, 550 पेज के किताब में जो स्केल बताया जा सकता है, एक 2 घंटे की फिल्म या 2.5 घंटे की फिल्म में, with the budget constraint, with the several other constraints, with the other politics of commerce, and with there are let's think of the practicalities, तो वो स्केलिंग आप शायद हो नहीं पाता है। मैं क्लासिक बात कर रहा हूँ, क्लासिक लिटरेचर अगर हम देख लेते हैं, बट कुछ हम देख सकते हैं कि बहुत सारे, अगर साइंस फिक्शन के जॉनर में जाए, there are multiple such films जो साइंस फिक्शन जब वो मूवी बना है, the movie is actually a masterpiece in terms of comparing to the book. So I don't think I have any right or authority, neither I am educated
or competent enough to comment on this, that what is right or wrong. I think we need to take the case it as a case by case basis. We need to pick up the case and see, okay, how did it happen? What did it do? What went wrong or what was right? I think we have to be more open in this analysis in a world of OTT, because OTT also has done certain interesting things. I mean, OTT has a contribution to also break certain barriers, and we have to give that credit to OTT. I'm saying that it has to be. We need to have a much more open mind when we make a commentary on this. जी जी अरुण जी, वही सवाल आपसे है. आई मीन अगर मैं एक राइटर को जानती हूँ कि इनकी जो नॉवेल है और काफी ज्यादा मतलब अच्छी जा रही है एंड रीसेंट बुक है, तो वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही स्क्रीन अडेप्टेशन के लिए ले ली गई है. तो अभी जब आगे मेरी बात हुई है तो दैट राइटर हैज बीन पेड, उनका चेक उनको आ गया है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बट देन वो आगे कैसी पिक्चर बन रही है बड़े पर्दे पर, इस बात की खबर बिल्कुल भी एक राइटर को नहीं है. तो आपको लगता है कि वो एक राइटर को एक कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट वो हक मिलना चाहिए टू नो द प्रोग्रेस की उनकी नॉवेल से ली गई कहानी कहाँ से कहाँ तक और किस तरह से चेंज होके बड़े पर्दे तक पहुंच रही है, या फिर अगर पर्दे पर सिर्फ राइटर ने, लेखक ने नाम देख लिया अपना कि ओके दिस मूवी इज इज इंस्पायर्ड बाय नॉवल रिटन बाय सो एंड सो, अपना नाम बड़े पर्दे पे, कि वही काफी होता है एक लेखक के लिए. तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, एक्चुअली मेरा कहना है कि पहले तो जो भी लेखक ने लिखा है जी, तो पहले डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का चाह रहे हैं. वो लेखक ने जो लिखा है हूबहू उसको वो दिखाना चाहते हैं, या फिर वो कोई चीज से मतलब इंस्पायर होकर या फिर उसका रूपांतरण करके उसके थ्रू वो नाटक मतलब या फिल्म या थिएटर में वो करना चाहते हैं. लेकिन दिक्कत क्या है, मुझे नहीं लगता है कि पूरे स्टोरी को ही ये करके खाली उनके नाम उनको मिल जाने से उसमें राइटर को संतुष्टि मिलेगी, ये हो ही नहीं सकता. क्योंकि वो है कि उनके जो भी मेहनत है वो भी मतलब उसमें दिखे, उनके वहां पे दिखे. तो इसमें डायरेक्टर को ज्यादातर ध्यान देना चाहिए कि वो राइटर का जो उसने जो लिखा है वो ज्यादा उसमें ज्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको ज्यादा मतलब डिस्ट्रॉय ना करके जी डायरेक्टर ये भी कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं. मतलब राइटर जो बोलना चाहते हैं वो अलग तरीके से हो सकता है. मैं भी वो बिना डायलॉग के भी वो सारी चीजें आ सकते हैं जी. जैसे हम थिएटर में करते हैं, खास करके हम कोई चीज बताना चाहते हैं, हम सेट के थ्रू भी बता देते हैं, प्रॉपर्टी के थ्रू भी बता देते हैं, कुछ म्यूजिक के थ्रू भी बता देते हैं. तो हम कोशिश करते हैं कि राइटर ने जो लिखा है अब मतलब आज एक डायरेक्टर मैं उसको मतलब बचाते हुए अपने सारे चीजें और अपना जो बात कहना चाहता हूँ वो भी मैं पब्लिक के पास मतलब ऑडियंस के पास रख पाऊँ. मेरा सोच और राइटर का सोच दोनों को मिला के मतलब ऑडियंस के पास वो जाना चाहिए. और वो लेकिन ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिर तो अलग बात है. तो उसमें अरुण सर आपने सारे ऑथर का दर्द मतलब चंद लाइनों में कह दिया है. आनंद जी सर और विकास साहब इस बात से एग्री करेंगे, और अक्सर ये डिस्कशन होता रहता है कि, और मैंने एक बात कही थी कहीं कि ऑथर बेचारे की जिंदगी बहुत ही ना दोधारी तलवार पे है. लिखते वक्त एडिटर से लड़ाई चल रही होती है, क्योंकि एडिटर भी कहता भैया तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम ये चीज चेंज करो, प्लॉट चेंज करो, ये करो. और अगर हमने लिख लिया, और जैसा कि कावेरी जी ने बताया कि नहीं मतलब अगर अच्छी हो गई, ऑथर थोड़ा बढ़िया हो गया, उसकी बुक एडेप्टेशन होगी, उसके बाद स्क्रिप्ट राइटर से लड़े और डायरेक्टर साहब से लड़े. डायरेक्टर साहब देखो हमने मूवी कुछ और लिखी थी, आप अलग ही दुनिया में जा रहे हो. जी. पर एक्चुअली एडिंग टू जो आपने नीतीश आपने कहा है कि आजकल कॉन्ट्रैक्ट ही इस हिसाब से बनता है कि एक बार आपने अपनी कहानी दे दी ना प्रोडक्शन हाउस को, उसके बाद यू गेट योर चेक एंड ये सब हो जाता फॉर्मेलिटीज. उसके बाद जिसकी किताब अडेप्ट करी जा रही है उसको सीन में ही नहीं रखते कॉन्ट्रैक्ट में. दैट राइटर कैन नॉट इंटरफियर. ऐसा है कावेरी? यही एक सवाल है. सबसे बड़ा जरूरी सवाल ये है कि हाउ मच वी हैव द कॉन्फिडेंस ऑन अवर ऑन वर्क. हम ये अगर सोच के बैठ रहे हैं कि नहीं जी मेरा किसी तरह से चाहे हॉटस्टार ले ले, नेटफ्लिक्स ले ले, अमेजॉन प्राइम ले, बस ले ले, मेरा जीवन सफल हो जाए, तो फिर तो ऐसा होगा. यू आर शोइंग डेस्परेशन, यू डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर वर्क. आज अगर जैसे मैं एक नाम बताता हूँ, विकास स्वरूप,
हमारे कम्युनिटी के सबसे बड़े राइटर जिन पे जो ऑस्कर अवार्डेड मूवी जो बन चुकी है, स्लमडॉग मिलियनेयर, क्वेश्चन एंड आंसर बुक है उनकी। अभी उनकी एक बुक है द सिक्स सस्पेक्ट्स, उन पे बहुत ही प्राइम एक जो है वेब सीरीज आ रही है। चाहे हम विक्रम चंद्रा सर की बात कर लें, उनकी सेकंड गेम सबने देखी है। क्या आपको लगता है कि विक्रम चंद्रा सर का कोई रोल नहीं होगा जब वरुण ग्रोवर साहब लिख रहे होंगे? वरुण ग्रोवर साहब इज द स्क्रिप्ट राइटर। क्योंकि हमारे अंदर डेस्परेशन इतना ज्यादा है कि बस मुझे स्क्रीन पे आना है, स्क्रीन पे किस लिहाज से आना है। आई थिंक वॉइस इशू हो रहा है, वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है। इज इट ओके? इज इट ओके? आई एम ऑडिबल? या इट्स या क्लियर है। या सो clear, हमारे साथ क्या, हम ऑथर्स अपने आप को पहले ही मान के ये बैठ के चल लिए कि नहीं, हमारा स्क्रीन पे आ गया, हमारा जीवन सफल हो गया, हमने जो है महामृत्युंजय का जाप कर लिया, बात खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश, ये वाला जो है सीन है। अगर आपके कंटेंट में आपको अपने ऊपर विश्वास है तो फिर आपको कंपनी को देना पड़ेगा। आज आप सुनते हो कि नहीं, वी हैव नेगोशिएशन। आज एक जो सॉलिड सा एक्टर होता है, इसकी एक मूवी हिट होती है, 2 मूवी हिट होती है, उसके अपने टेंट्रम्स होते हैं। सॉरी, आई एम नॉट सेइंग यू टू गेट इनटू द टेंट्रम्स, बट उनके अपने क्लॉजेज होते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट्रेस के आई डू नॉट हैव टू डू किसिंग सीन, उनसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। अगर उनको लगता है नहीं बस फिल्म में आ गई, मेरा जीवन सफल हो गया, चाहे किसिंग सीन हो चाहे कोई भी सीन हो, आई विल नॉट टेल ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो बस मेरा जीवन सफल हो जाए, फिर तो आप डेस्परेट हो, तो फिर तो आपको वैसे भी हक नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सत्यजीत राय की फिल्म ले लीजिए, उन्होंने भी काफी सारे नॉवेल से और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर के और सारे चीजों से उन्होंने काफी सारे जो स्टोरीज को लेके उन्होंने मतलब फिल्म बनी है काफी सारी। में अगर और यही चीज मैं बता रहा हूं कि अगर 3 इडियट को लिया जाए, उन्होंने लिखा कुछ है लेकिन इसको इतना मसाला दे के कर दिया, लेकिन राइटर का अच्छा ठीक है, राइटर को यहाँ पे और ज्यादा ये मिल गया, उसके बाद उन्होंने काफी सारे और भी किताबें, लेकिन जो उन्होंने लिखा था हूबहू तो वो तो नहीं रखा उन्होंने। लेकिन राइटर को थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है, वो भले ही एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या पैसे के लिए अपना या और चीजों के लिए थोड़ा सा। एक पॉइंट और ऐड करूंगा अरुण सर, एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैं। अभी रिसेंटली मैं स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन की एक वीडियो देख रहा था, और ऐसे ही भी जग जाहिर ये बात है कि हमारे इंडिया में राइटर्स को इतना कम पे किया जाता है जितना कि एक नॉर्मल मैनेजरियल पोजीशन वाला बंदा उससे अच्छा कमा लेता है। सॉरी, बहुत ही बेकार बात है, राइटर्स हमारे साथ बैठे हैं, अब उसके बाद आदमी ये सोचता है कि यार जो मिल रहा है उसे तो रख लूं, वो भी चलेगा तो मुझे कोई देने वाला नहीं है। और आपने हॉलीवुड की बात करी कि हॉलीवुड का जो है हैरी पॉटर के आनंद जी सर ने बात करी, एक डेटा के अनुसार पूरी मूवी का 15% to 20% बजट होता है सिर्फ राइटर्स के लिए हमारे यहाँ। और एक मजे की डेटा और शेयर करता हूं विदाउट गेटिंग इनटू एनी नेम्स, कि जो एक्टर के जो मेकअप मैन होते हैं कई बार उनका बजट ज्यादा होता है जो मूवी का सोल होता है, राइटर होता है। उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि आपको जो है से मिलेगा, आपको लिबर्टी मिलेगा कि नहीं जाए आप बताएं कि मैंने स्टोरी ना ऐसे लिखी है तो इसको ऐसे करना है, वो आप पे यू आर देयर कि आपको उसने तरस खा के एडेप्टेशन कर दिया। और बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं, एक नाम नहीं लूंगा फिर से, रिसेंटली बहुत एक पॉपुलर मूवी वेब सीरीज आई, पूरी मूवी में सिंगल लाइन क्रेडिट है। अगेन इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, इसे मैं पब्लिकली, हर ऑथर का एक ओपिनियन होता है, मेरी पूरी मूवी में एक सिंगल लाइन क्रेडिट है, तो मैं अपने आप को क्या समझू? जस्ट फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक, फ्रॉम नॉवेल, फ्रॉम शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। उसके बाद आप करें आपको सेव चाहिए, सॉरी, आपको अपने कंटेंट को लेके मजबूत होना पड़ेगा कि इफ आई एम देयर इन द स्क्रिप्ट राइटिंग पार्ट देन आई विल गिव यू माय नॉवेल, अदरवाइज जस्ट टाटा गुड बाय, तब आपको मिलेगा। सही। नीतीश एकदम सही कॉर्ड छेड़ा है। बात यह है कि देखिए यही तो आपके समाज किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं उसका ही रिफ्लेक्शन ये सब है। आपके समाज में इफ यू गेट पीपल हु आर मोर ऑथेंटिक अबाउट देयर वर्क, यू समाज के रिश्ते और रिश्ते भी देख लीजिए। डू वी लुक फॉर ऑथेंटिसिटी इन रिलेशनशिप? नो, वी लुक फॉर सुपरफिशियलिटी। सो जब तक ऑथेंटिसिटी के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे तब तक ये होता जाएगा। और एटलीस्ट बाकी आप कोई भी आप यूरोपियन मूवीज देखिए, ओरिएंटल मूवीज देखिए, फॉर दैट मैटर मैं बोल रहा हूँ आप ईरानियन मूवीज देखिए, इवन इन द टाइम ऑफ ईरानियन फिल्म्स अगर स्टडी करेंगे, इवन विथ सो मच ऑफ सेंसर कट एवरीथिंग, वहां राइटर्स के रिस्पेक्ट ज्यादा है।
The writers are respected much more. Agree. So it is, again I'm saying again and again, आपके कल्चर जिस दिन अपने कल्चर पे जैसे आपको भरोसा होगा ना, तो you will understand that what is the soul of your creativity, and then you will value it. Right now we don't value the, first of all, valuation is not in terms of a check, जैसे नीतीश ने बोला and as well as अरुण जी ने भी सही बताया कि डायरेक्टर और राइटर के बीच एक डायलॉग होना चाहिए आइडियली, एक डायलॉग के थ्रू से एक कन्वर्शन हो जाए। अब कॉमर्स ऐसा है कि वो उसको लगा कि मैंने आपको 10 लाख का चेक दे दिया, खत्म। अरुण सर, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, राइटर की क्या हालत है इंडिया में, पर्सनल एक्सपीरियंस। आई वाज योर कंटेंट राइटर विद अ मीडिया ग्रुप, ओके। वहां के जो कलीग्स थे मेरे, उन्हें किसी दिन पता चला कि मैं कंटेंट राइटिंग ही सिर्फ करता हूँ, एंड देयर आर वर्ड्स, उसका वर्ड ये था, नितीश भाई आपको तो यार कुर्ते पजामे में आना चाहिए था, राइटर्स तो ऐसे ही आते हैं। मैंने कहा व्हाट इज दिस, मींस आई कैन नॉट कम इन कंप्लीट कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म बिकॉज आई एम जस्ट अ राइटर। तो हमारे माइंड में ये सेट किया कि भैया बाल है बिखरे, वो जॉन एलियट साहब का शेर है ना कि और बाल है बिखरे और क्या होता होगा। तो वही वाली बात है, हमारे साथ मसला क्या है, हम अपने आप को राइटर है तो यार इससे अच्छा तो मतलब मैं कुछ लिख लूं। अच्छा, मैं आपको आज और एक शेयर करता हूं, एकदम रिसेंट। मैं फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ रहा था, समवन वाज हायरिंग अ कंटेंट राइटर फॉर जस्ट 20 rupees per article. Trust me, writing 1,000 words or 800 words article takes more than 5 to 6 hours. Anandjit sir would affirm it. Okay, for 6 hours you are getting paid 20 rupees. And when a laborer, जो डेली वेज लेबरर है, जो सर पे ईटेड होता है, उसे भी 6 घंटे के 200 रुपए मिलेंगे, 250 रुपए मिलेंगे। सो वी आर वर्किंग इवन एट द 1/10 ऑफ अ डेली वेज लेबरर। देन हाउ वी आर सेइंग दैट ओके we are going to have a negotiation or we are going to have a dialogue with a director or the script writer who are already in the industry. एक सिंपल चीज देख लीजिए ना, आपके घर में किसी एक बच्चे का जन्म हुआ, वो अगर बोले कि मैं पढ़ाई करूंगा राइटर बनने के लिए, वो मिडिल क्लास फैमिली कैसे दिखेगा? हाउ डू वी लुक ऑन टू से अ चाइल्ड जो बोल रहा है मुझे राइटर बनना है, सबसे मेंटल फैसिलिटी में पढ़ाई करूंगा राइटर बनने के लिए। हाँ, तो आपके एक सिंपल, मैं वही बता रहा हूँ, कैसे समाज इसको देखेगा, अरे यार ये क्या करता है, बोल रहा है राइटर बनेगा, वो क्या होता है? हम प्रेमचंद को पढ़ना तो चाहते हैं, प्रेमचंद बनना नहीं चाहते। नहीं, बनना भी नहीं, किसी को अपने घर में प्रेमचंद नहीं चाहिए, बट बुक शेल्फ में प्रेमचंद को चाहिए जी। दैट्स अ लार्जर प्रॉब्लम। सही बात है। और सबसे बड़ा मसला यही है राइटिंग को लेके कि एक और सवाल है सर, अक्सर हम ये बात को बहुत क्रिप करते हैं कि इंडियन राइटर्स को पेड कम मिलता है, लेकिन एक बहुत ऑथेंटिक बात ये भी अगर सवाल उठाया जाए तो हम ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कितना कर पा रहे हैं। जैसे मैंने किसी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शायद कभी कहा था कि अगर हमें लगा कि नहीं अभी रोमांस बहुत अच्छा चल रहा है, रोमांस जॉनर बहुत अच्छा चल रहा है, हमने रोमांस लिखना शुरू कर। वही वाली बात है, प्यार तो ऐसी चीज है कि जिसकी किसी भी उम्र में एक्सपायरी डेट नहीं होती। हमें पता चला कि किसी दिन ना थ्रिलर में अच्छा चल रहा है, हमने थ्रिलर लिखना शुरू कर दिया, हमारा खुद का ओरिजिनल कंटेंट बहुत कम आ रहा है। तो उसके बाद फिर वही है, वो भी होना है कि अगर आपने ओरिजिनल कंटेंट ही नहीं करा है तो आपको डायरेक्टर साहब कितना उठा के देंगे। इसमें उसका भी दोष नहीं है नीतीश, आपसे हमारा बच्चा होता है, उसको स्कूल में एडमिशन 4 साल की उम्र से शुरू होता है कि उसका नंबर होता है बाप माँ का 90 मार्क्स 95 मार्क्स। हमने तो बच्चे के जन्म से ही राइटिंग क्या ग्रेडिंग सिस्टम चालू कर दिया ना, ऑथेंटिसिटी जाएगा कहाँ? और सबसे बड़ी अभी एक मैं रिसेंटली देख रहा था, हाँ सॉरी विकास भाई कुछ बोल रहे हैं, कन्वर्सेशन को याद बताया हुआ रिसेंटली वंडरिंग पढ़ रहा था मैं एक, देयर इज अ ड्रामा जो हम कहते हैं, जो ड्रामा फॉर्म है, जैसे ड्रामा की सर ने बात करी वो आर्ट फॉर्म में करी, ड्रामा एक जॉनर भी है राइटिंग का, कि ड्रामा बहुत कम लोग लिख रहे हैं। अभी हम कितने लोग हैं जो अपने आप को ड्रामाटिस्ट कहलाना पसंद करते हैं? हम नॉवेलिस्ट लिख लेते हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर लिख लेते हैं, पोएट लिख लेते हैं। ड्रामा का कल्चर एज अ राइटिंग भी बहुत कम हुआ है। और ये अरुण सर ज्यादा कम करेंगे कि हम बहुत सारे जो पुराने क्लासिक्स ड्रामा है उन पे थिएटर्स कर रहे हैं, नए ड्रामा बहुत कम आ रहे हैं। यही तो एक चीज मैं इससे पहले भी थोड़ा सा आपको बोला था, जो हम अपने टिप्स में सब रखना चाहते हैं उंगली मोबाइल के थ्रू। एक्चुअली लिखने के लिए हमें एक्चुअली क्या है कि समाज को अच्छे से देखना होता है, आपके कल्चर में क्या है। हाँ,
आपके मतलब आपके घर के आसपास क्या हो रही है, देश विदेश में क्या हो रहा है, जब तक आप चीजें देखोगे नहीं, उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज नहीं करोगे तो लिखोगे कैसे? तो इसके लिए तो हाँ 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 जी, हेलो। हाँ जी, हाँ या जी, सर प्लीज प्लीज कंटिन्यू मैं सर। यही बोल रहा था कि पहले उसके लिए हमें पहले अपने आप को तैयार करना होता है कि वो साहित्य के प्रति उसका रुझान मतलब कैसे और ज्यादा वो इंटरेस्ट ले पढ़ाई करने के लिए, अपने जितने सारे फॉर्म से उसके लिए वो थोड़ा सा और ज्यादा उसको देखने के लिए उसका इंटरेस्ट बढ़ाए, सोच डेवलप करे, क्योंकि उसका सेंस को डेवलप करे कि हम लोग भी अपना सेंस को भी हम खत्म कर चुके हैं लगभग। जैसे मैं बात कहूंगा कि हमें महसूस होता है कि मुझे जैसे कोई राइटर अगर लिखता है, हम इतना मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है, मतलब कितना जुड़ेगा मुझे पता नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि हम जूता पहन पहन के अपने सेंस को इतना खराब कर दिए हैं, हमें मिट्टी में चलना नहीं पता नहीं हमें मिट्टी में चलने का कैसा एहसास होगा। जब आपके पास एहसास भी नहीं है कि ऐसा मैं तो अगर कंकड़ में चलूंगा मुझे ऐसा फील होगा, थोड़ा सा पथरीले, पहले वो सारी चीजें आते थे, वो सेंस जब डेवलप होता है तभी तो आप उसको लिखोगे। तो वो सारी चीजें खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए हमें लगता है कि बहुत ज्यादा अब घर घर तक जाके इनको किसी भी हालत में, मतलब वो एजुकेशन के थ्रू हो या किसी भी माध्यम से हमें उसको और डेवलप करना चाहिए, और थोड़ा सा इन जो मोबाइल मोबाइल से हटके कुछ करना चाहिए हम लोगों को, तभी ये डेवलप हो पाएगा। और नहीं नहीं, यकीनन ये जो Uh, बातें हैं वो बहुत सच में ये बहुत जरूरी है कि एज अ कल्चर, एज अ ड्रामा, और अगर हम ये चीजों को कंक्लूड करें तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत जरूरी है। जैसे विकास विकास साहब ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट करा बुक्स ड्रामा एंड स्क्रीन की, कहीं ना कहीं लिटरेचर और स्क्रीन को जो है और थिएटर्स को, क्योंकि ड्रामा आज भी अगर जिंदा है तो थिएटर्स में जिंदा है। स्क्रीन की हाँ अगर जी, हर राइटर की जो है कहीं ना कहीं फैंटेसी कहूं, नीड कहूं, या उसका ड्रीम कहूं, वो वही ड्रीम है। और एज अ राइटर, एज अ आर्टिस्ट, बुक्स का तो एक रहेगा ही रहेगा। सो ये चीज बहुत जरूरी है कि हम तीनों चीजों को एक समेट के चले। और जो जी, कल्चर की, जैसे आपने नुक्कड़ नाटक की बात करी, आपने ड्रामा की बात करी, और कहीं ना कहीं हमें एज अ राइटर जो अपने आप को सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि खुद के कॉन्फिडेंस पे हम इंडिजिनियस कंटेंट लेके आए, ऑथेंटिक कंटेंट लेके आए, और अपने आप को दयनीय स्थिति में नहीं माने। ऐसा नहीं माने कि भैया अगर ये नहीं हुआ तो जीवन बर्बाद, तबाह, कुछ नहीं है, खत्म। ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू हैव द गट्स, ट्रस्ट मी, थिंग्स आर नेगोशिएटेड इन आवर ऑन वे। जी, जी। सो बिफोर वाइंड अप आवर सेशन, तो जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, विकास विकास से ही पूछते हैं कि हाउ व्हाट एज पर हिम, अकॉर्डिंग टू हिम, कि हाउ डज ही सी द कनेक्शन बिटवीन बुक्स, ड्रामा एंड स्क्रीन? जी, विकास विकास। साहब ही बताएंगे। आखिरी सब तो देखिए विकास साहब के होने चाहिए। कहीं ना कहीं सबसे पहले थैंक यू सो मच कावेरी, आनंद जी सर, अरुण सर एंड नीतीश। लिटेरिया इनसाइट का ये जो इनिशिएटिव है बुक्स ड्रामा एंड स्क्रीन, ये लाया ही इसलिए गया है ताकि राइटर्स एंड डायरेक्टर्स में लड़ाई ना हो। ये फ्रेंकली बहुत स्पीकिंग, सही है। वो बहुत राइटर सही। ये ना कहे हाँ जी मैंने अपनी बुक में ये स्टोरी थी, ये पैरा था, ये डायलॉग था, आपने ऐड क्यों नहीं किया। डायरेक्टर ये ना कहे नहीं करूंगा तो क्या कर लोगे, मैंने तो पैसा दे दिया आपको। तो आनंद जी सर ने एग्जैक्टली जो वर्डिंग यूज किया कि आ, कहीं ना कहीं हमें एक कवि जो बच्चे वाली बात बोली थी कि हम कभी भी अपने बच्चों को, ये इंडियन कल्चर में है, ये नहीं सिखाते। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं कहते कि आपको बड़े होकर राइटर बनना है, हम सपोर्ट करेंगे, आप राइटर बनो, आप स्क्रिप्ट राइटर बनो, आप स्टोरी राइटर बनो, आप डायलॉग राइटर बनो, आप लिरिसिस्ट बनो, गाने लिखो। एग्जैक्टली हमारा हम ये सुनते आ रहे हैं कि डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो वो एक बच्चे के माइंड में ऑलरेडी सेट होता है, यार मेरा पैशन कुछ और है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं जब बुक्स ड्रामा एंड स्क्रीन जो लाया गया है, वो इसीलिए लाया गया है कि जब एक राइटर कुछ लिखता है तो क्या वो इस क्वालिटी का है कि उसको स्क्रीन पर लाया जाए। कहीं ना कहीं अभी मैं टेडेक्स एक वीडियो देख रहा था, तो एक राइटर, हिंदी के राइटर, काफी नाम है उनका, बोल रहे थे कि अगर आपने अपना पैशन, अपना ड्रीम, आपने ये चुना कि आप एक राइटर हैं, तो समझ लीजिए कि आपका फ्यूचर ऑलरेडी गड्ढे में चला गया। और अगर आपने उसमें लैंग्वेज वेरिएशन कर दिया कि आप एक हिंदी के राइटर हैं, तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी सबसे पहले आपने मारी।
तो एग्जैक्टली एज अ राइटर मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमें अपने कंटेंट में कंटेंट पर वो भरोसा, वो बिलीव होना चाहिए कि अगर एक डायरेक्टर उसको अडेप्ट करता है, वो चाहता है कि हमारा लिखा हुआ डायलॉग, हमारे लिखे हुए गाने स्क्रीन पर आए, तो क्या उस वाकई वो दमदार हैं या नहीं है। सिर्फ आनंद सर ने जैसा कहा कि एज अ एक डायरेक्टर अगर कुछ अमाउंट पे कर देते हैं, और जो आपने भी बोला कि आपके एक फ्रेंड है जिनका ऑलरेडी स्क्रीन एडेप्टेशन हो चुका है, जी तो एग्जैक्टली डायरेक्टर का ये नहीं बनता है बिल्कुल हक, क्योंकि डायरेक्शन वाली लाइन में एज अ डायरेक्टर मैं भी लाइन में खड़ा हुआ हूँ, तो मैं बुराई नहीं कर सकता। तो तो कहीं ना कहीं नहीं तो मेरा आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन एक जमीनी स्तर की जो हकीकत है वो ये है कि डायरेक्टर का सही मायनों में ये बिल्कुल भी हक नहीं बनता है कि वो स्टोरी में उसको अपने ढंग से प्रेजेंट करे, प्रस्तुत करे। कहीं ना कहीं एक राइटर का इन्वॉल्वमेंट, 100% इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, उसको क्रेडिट मिलना जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग उसने की। अगर वो स्टार्टिंग ही नहीं करता तो क्या फिल्म बनती, क्या स्क्रीन पर आता, और क्या मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग प्रमोशन उसका होता। यकीनन। तो कहीं ना कहीं उन चीजों पर लिटेरिया इनसाइट का जो इनिशिएटिव है, इसीलिए राइटर्स को, डायरेक्टर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं। सिटी बाय सिटी ये इनिशिएटिव जा रहा है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि हम इस बात पर चर्चा करें, इस बात को हम सीरियसली लें कि एक राइटर का अपने कंटेंट पर, अपने सेल्फ रिटन कंटेंट पर 100% उसको हक क्यों नहीं है। और अगर आप सिर्फ एक अमाउंट पे कर रहे हैं एज अ एक स्क्रिप्ट राइटर को, स्क्रीन राइटर को, तो क्या वो इनफ है। तो इससे राइटर कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में चले जाते हैं कि एक हमें अमाउंट पे कर दिया गया है जिसका, और अभी मुझसे ये पूछा भी नहीं जा रहा है कि कैरेक्टर पर ये डायलॉग 100% शूट करेगा या नहीं करेगा। एग्जैक्टली जो अरुण सर ने कहा कि कहीं ना कहीं किताबें एक थिएटर लाइफ और एक स्क्रीन लाइफ ये आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि कुछ लोगों के पास जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास जिन एरियाज में बुक्स नहीं पहुंच पाती हैं, उनको नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले के थ्रू, थिएटर प्ले के थ्रू लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है, बताया जाता है कि इसका एग्जैक्टली हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका थीम क्या है। बुक्स का मीनिंग है कि एक रिटन फॉर्म में हो गया, थिएटर मतलब और ड्रामा का मीनिंग है कि एक एक्टिंग वे में हो गया, एंड स्क्रीन का मीनिंग ये है कि एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो हम शो करना चाह रहे। एग्जैक्टली ऑथर अपनी बुक के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे थे, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म मल्टीप्लेक्स के थ्रू शो होता है। और ये प्रोसेस वाइज में होता है कि सबसे पहले ऑथर लिखेगा, उसका स्क्रिप्ट, सिंपल स्टोरी उन्होंने लिखा, उस स्टोरी को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना, फिर उसमें डायलॉग्स वगैरह मिक्स करके ऐड ऑन करके उसको स्क्रीन में चेंज करना, और स्क्रीन से फिर ब्रांडिंग प्रमोशन वाला जो मेन पार्ट है उसको ऐड ऑन करके उसको वर्ल्ड वाइड रिलीज करना। कोई भी मूवी या किसी भी गाने, टी सीरीज या जी म्यूजिक के जो गाने रिलीज होते हैं, एग्जैक्टली तो कई गानों के हम फैन हो जाते हैं, वाह सिंगर ने क्या गाया है। लेकिन हम ये हकीकत बात है हमारे समाज की, हम ये बहुत ही कम ध्यान देते हैं कि लिखा किसने। तो मेरा राइटिंग पर फोकस ज्यादा है यहाँ पर। मैं आपको जी बताऊं, ऑलरेडी एज अ लिरिसिस्ट, अभी जब रिसेंटली जो मेरा गाना आया था स्टूडियो में, दिल्ली का म्यूजिक स्टूडियो था, तो रिकॉर्डिंग वगैरह सब हो गया। जब फाइनली ये बात हुई कि गाने के नीचे जो सबटाइटल होता है उसमें सॉन्ग्स राइटर का नाम क्यों नहीं जाता है, तो जनाब बोलते हैं कि विकास जी आप तो जानते ही हैं, ये तो इतने सालों से चला आ रहा है कि इंडस्ट्री में सिर्फ एक गाने की पहचान और पूरा क्रेडिट जो होता है वो सिर्फ एक सिंगर का होता है और एक म्यूजिशियन का होता है। मैंने कहा मैं तो बहुत छोटा हूँ इंडस्ट्री में, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा अपना कि मैं इस इतिहास को भी बदलने में समर्थ हो सकूं, इस लायक बन सकूं कि मैं यही बदल लूंगा एग्जैक्टली कि राइटर का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है। जब एक राइटर एक गाने के बोल नहीं लिखेगा तो कहाँ से गाना सिंगर गा लेगा, कहाँ से म्यूजिशियन अपना म्यूजिक दे लेगा, और कहाँ से जो कंपनी है वो उसको रिलीज कर पाएगी। तो कहीं ना जी कहीं, लेकिन इस बात को भी मैं मानता हूँ कि राइटिंग, डायरेक्शन
बुक्स जो थिएटर जितने भी जो एक थिएटर एक प्ले होता है, एक नुक्कड़ नाटक होता है जिसमें सभी टीम मेंबर्स काम करते हैं, फिर वो चाहे वो राइटर हो, आर्ट डायरेक्टर हो, आर्टिस्ट हो, उसका जो प्रेजेंटर है वो हो, या उसकी मार्केटिंग टीम है, तो मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम किया जाता है, तभी वो इतना उसका असली रूप निखर के आ पाता है, जो ऑडियंस के दिलों में राज करता है, और जो किरदार है वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि बुक्स, ड्रामा एंड स्क्रीन को शहर से शहर, गांव से गांव, और जो मेट्रो सिटीज है वहां तक पहुंचाया जाए, और लोगों से चर्चा की जाए, फिर चाहे वो एक आर्टिस्ट हो, एक राइटर हो, एक जो किसी भी किरदार के लोगों से ये बात की जाए कि ऐसा क्यों होता है, और ऐसा अगर नहीं होता क्यों, तो क्यों नहीं होता एग्जैक्टली। तो मैं तो जी राइटर्स की भी आवाज बनकर आना चाह रहा हूँ, और मैं तो डायरेक्टर्स की भी। हाँ जी, जी जी। हो गया। सो ऑन दिस हाँ वंडरफुल, ये जो जो भी आपने बात कही है, ऑफ कोर्स जो अरुण जी एंड आनंद जी ने भी कहा है, तो दैट हैज गिवन सम फूड फॉर थॉट टू अस, एंड होप थ्रू योर इनिशिएटिव ये आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचे ये बात, that each and every talent has to be valued. So I hope that आनंद जी और अरुण जी, मुझे आप सबके साथ में, नितेश एंड विकास के साथ में भी बात करके उतना ही अच्छा लगा जितना ही आपको प्रोग्राम में आके ये पैनलिस्ट बन के यहाँ पे अच्छा लगा, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस. सो क्विकली आई रिक्वेस्ट यू टू से द टेक अवे मैसेज एट द एंड ऑफ द डिस्कशन. सो मैं अरुण जी से पहले बोलूंगी कि आप जाते जाते क्या एक मैसेज देना चाहेंगे. मैं यही बोलना चाहूंगा कि खास करके अभिनेताओं के लिए, कि अभिनेता बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना पहले जरूरी है, फिर उसके बाद आप अपना जो सेंसेस है उसको डेवलप करिए. हम सारे सेंसेस को खत्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे. हमें पहले जैसे अगर मोबाइल में हम आप पंछियों के साउंड सुनते हैं, लेकिन रियल में हम कितने सुनते हैं? तो वो सारी चीजों को सुनिए, नेचर से ज्यादा जुड़े रहिए. और खास करके अनुभव के लिए हमें किताबों से, समाज से, हमारे कल्चर से, हमारे हिस्ट्री से, इन सब से मतलब ज्यादा हमें उसको पढ़ना चाहिए, और उनसे हमें और ज्यादा प्रेरणा लेना चाहिए. और खास करके एक्टर के नाते आपको आपके फिटनेस के प्रति ध्यान रखना चाहिए. ये नहीं कि बॉडी बनाना है, बॉडी बनाने से एक्टिंग नहीं होता है. और वो इसलिए मतलब एक मतलब फ्लेक्सिबल बॉडी होना चाहिए, ना कि स्टिफ बॉडी. ये एक्टरों के लिए है. और राइटर के लिए भी मेरा यही है कि हमेशा जो भी जितने हमारे राइटर्स हैं सारे, इन सबको मतलब आगे आने वाले समय पे इनके मतलब किसी को भी अन्याय ना हो. जो उन्होंने लिखा है, अगर सही में उन्होंने इतने मेहनत किया है, तो उनके मेहनत को ऐसे मतलब कैसे मतलब तोड़ फोड़ के इसको बर्बाद ना करके उनके महत्व को मतलब काम को भी इतना महत्व दिया जाए. बस, थैंक यू. हाँ जी सर. So I was saying, Anand ji, over to you and your final words before we end this valuable discussion that we had today. No final words. I think all things are done and dusted, discussed. I think in a journey like this, screen to book to screen or screen to book, there can be no final words. And जैसे अरुण जी बोल रहे हैं कि हम थोड़ा ज्यादा कीचड़ में खेले, हाथ में कीचड़ लें, हम थोड़ा मिट्टी को हाथ में ले, मिट्टी को हाथ में लेना तो बंद कर चुके हैं हम. कभी मैं जब छोटे उम्र में फुटबॉल खेलने जाता था, तो मैं हाइड्रेन में भी कूद जाता था. ठीक है, आज जाके लगता है कि वो जो हाइड्रेन में कूदा था, डिफरेंट लोगों को इतने जो ऑब्जर्व किए, वही काम आए हैं जो अरुण जी बोल रहे हैं कि अपने आसपास सब चीज को महसूस कीजिए. महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अपने देखिए, संस्कृति में संग और कृति दोनों ही होता है. जब आप महसूस करेंगे तब कृति भी आएगा, संग भी आएगा. एंड हार्ड वर्क, देयर इज नो substitute for being authentic, genuine, honest, and working hard. And you have to be a straightforward, simple person at the end of the day. अच्छा कला लाने के लिए सिंपल होना बहुत जरूरी है. ये मेरा सोच है. कोई डिफर कर ही सकता है.
It's absolutely right. It's absolutely right. Right. Okay. So thank you, Anand ji, Arun ji, Nitish, and Vikas for being here and giving such valuable insights for through this amazing discussion that we had today. So this is Dr. Kaveri signing off from the platform and from the platform of Literia Insight. Thank you, Vikas, for giving me this opportunity, and thank you, everyone. Jai Hind. Thank you, Kaveri. Thanks to all. Thank you, Vikas. Thank you, Vikas. Thank you, Nitish ji. Thank you, Arun ji. Thank you, sir. Thank you, Arun sir. Okay, sir. Okay. Goodbye. Okay, bye-bye.